Now here we have to solve the pair of equations and reduce them in the form of linear equations, and after converting them in the form of linear equations, we have to find their values, that is we have to solve the equations. So let's start with the fifth part. 7x minus 2y upon xy equal to 5. So we just simplify it. So we can write this as 7x upon xy minus 2y upon xy is equal to 5. So here y is cancelled with y, x is cancelled with x, and we left with 7 upon y minus 2 upon x is equal to 5. It means minus 2 by x plus 7 by y is equal to 5. This is the equation first. Now the second equation is 8x plus 7y, 8x plus 7y upon xy is equal to 15. So यहाँ भी वही करेंगे कि we divide this by this, what you get? 8x upon xy plus 7y upon xy is equal to 15. So when you cancel this x with x, y with y, क्या बच गया? 7 upon x plus 8 upon y is equal to 15. अब ये उसी फॉर्म में आ गई जिस फॉर्म में हमारा फर्स्ट पार्ट था. तो मीन्स इन दोनों इक्वेशंस में व्हाट इज कॉमन? 1 by x इज कॉमन. तो अब इसको लेट कर लेंगे. लेट 1 by x इसको p मान लीजिए एंड 1 by y इज इक्वल टू q. सो आवर इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स, सो फ्रॉम फर्स्ट व्हाट वी गेट? 1 by x is what? p. तो ये क्या बन गया? minus 2p प्लस 1 by y क्या था? q. ये बन गया 7q equals to 5. So this is our first linear equation in the two variables. ये जो थी ये linear equation नहीं थी because यहाँ पर 1 by x को जब हम x को we put it into the numerator, it will become minus 1, power of minus 1. तो वो हमारी linear equation नहीं होगी. ठीक है. And from second what we have? 7 by x becomes 7p plus 8q equals to 15. Now अब we have to solve them. Either we use the method of substitution or elimination or cross multiplication. जो मेथड आप चाहते हो, we can use it. So we use the method of elimination, and as I told you earlier, to eliminate it, we have to make the coefficients of either p or q same. अब इसको कैसे सेम करेंगे हम? ये 2 है, ये 7 है. अगर हम इस इक्वेशन का जो कोएफिशिएंट है 7, इस 7 से हम इसको मल्टीप्लाई कर दें और इसके कोएफिशिएंट 2 से हम इसको मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या हो जाएगा? हमारा p के जो कोएफिशिएंट है वो सेम हो जाएंगे. So what we do? Multiplying third by 7 and fourth by 2. उसके बाद जब मल्टीप्लाई करने के बाद what we do? We have to subtract them. So and subtracting fourth from third. So first we multiply this third by 7. तो हर एक टर्म को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे. माइनस 14p प्लस अब प्लस 7 7 से 49 q 7 5 से 35. सो याद रखना बच्चे, इसको हमने सब्ट्रैक्ट नहीं करना. क्यों? साइंस ऑपोजिट है तो क्या करते हैं हम? ऐड करते हैं. एंड एडिंग फोर्थ एंड फिफ्थ. देखो बच्चे, आई टोल्ड यू, अगर साइन ऑपोजिट है, जो यहाँ ऑपोजिट है, तब हमको ऐड करना है, बिकॉज ऐड करने से वो कट जाएंगे. अब मल्टीप्लाइंग दिस इक्वेशन फिफ्थ फोर्थ बाय 2, 7 2 जा 14, 8 2 जा 16, 15 2 जा 30. ऐड करेंगे
14 and minus 14 cancel out. So what, when we add them, what do we get? 9, 6, 15, 65 Q. ये भी 65 आ गया. So what is Q? 65 by 65 means 1. So what we get? We get the value of Q. अब इस Q की वैल्यू को either you can put it in equation third or in fourth. So putting Q is equal to 1 in third, तो क्या आ जाएगा? minus 2p plus 7 into 1 is equal to 5, minus 2p is equal to 5 minus 7 is minus 2. So minus minus cancel. So ये भी आपका 1 आ गया. तो अब आपका p की वैल्यू भी 1 है, ठीक है. The value of p is 1. The value of q is also 1. बट हमें इक्वेशन x और y में है, तो we have to find the value of x and y. So क्या करेंगे? Let's see. Now since हमने क्या पुट किया था? 1 by x को p लिया था. 1 by x is p. But what is the value of p? 1 है. So 1 by x is equal to 1. So by cross multiplication x is equal to 1. ये हमारी आ गई फर्स्ट वैल्यू, दैट इज द वैल्यू ऑफ x. उसी तरह से 1 by y क्यों के इक्वल है, ठीक है, जो हमने लेट किया था. सो इफ 1 by y is equal to q, here the value of q is also 1. So 1 by y is equal to 1. It means y is equal to 1. So therefore x is equal to 1, v is equal to 1 is the solution. अगर आप चाहो बेटा, आप इन वैल्यूज को ना इस इक्वेशन में पुट करके भी चेक कर सकते हो कि वेदर योर सॉल्यूशन इज राइट और रॉन्ग. देखो अगर आप 1 पुट करते हो यहाँ, 7 1 7 minus 2 is 5. 5 upon 1 into 1 is 5. सेम आ गया. अगर हम यहाँ पुट करते हो, ठीक है, या इस थर्ड में पुट कर दो सेकंड में. सो 7 upon 1 7, 8 upon 1 8 and 7 plus 8 is 15. तो मीन्स आप ये भी चेक कर सकते हो वेदर योर सॉल्यूशंस आर राइट और रॉन्ग. सो द सिक्स्थ पार्ट. नाउ हियर योर इक्वेशन इज 6x plus 3y is equal to 6xy. अब यहाँ पर वेरिएबल्स इस, अब आप सोचोगे कि भाई ये तो हमारी लीनियर इक्वेशन आ गई, बट इट इज नॉट लीनियर इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पर x की पावर 1 है, y की पावर 1 है. इट्स ओके, बट दिस वेरिएबल इज ऑन लेफ्ट हैंड साइड आल्सो. बट हमें क्या होना चाहिए? लेफ्ट हैंड साइड में हमारा क्या होना चाहिए? कांस्टेंट टर्म. सो व्हाट वी डू? वी हैव टू रिमूव दिस xy. तो हाउ विल यू रिमूव इट? डिवाइडिंग बोथ साइड बाय x into y. So dividing both sides by xy. जब डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6x upon xy plus 3y upon xy is equal to 6y upon xy. अंडरस्टैंड? हमें क्या करना है कि इसको इक्वेशन की फॉर्म में चेंज करना है, तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड मस्ट बी कांस्टेंट. सो इसी तरह से, सो नाउ व्हेन यू सॉल्व इट, xy कैंसिल आउट, y is cancelled with y and x is cancelled with x. So students, what we left with? We left with, यहाँ पर लिख लो x की वैल्यू पहले. So 3 upon x plus 6 upon y is equal to 6. This is our equation first. Okay? अभी कैसी हो गई? जैसा हमारा फिफ्थ पार्ट था. Okay? And the second equation is 2x plus 4y is equal to 5xy. 2x plus 4y is equal to 5xy. अब ये क्वेश्चन दिया हमें. सो सेम करेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय xy. ठीक है बच्चे, हमें ये इक्वेशन भी गिवन दी है एंड दिस इक्वेशन इज ऑल्सो गिवन. अब हमने इसको उस फॉर्म में लेके आना है. अब क्या आएगा बेटा? 2x अपॉन xy, 4y अपॉन xy एंड 5xy अपॉन xy. कैंसिल हो गया. y इज कैंसिल विद y, x इज कैंसिल विद x. सो क्या आ गया? 4 अपॉन x प्लस 2 अपॉन y इज इक्वल टू 5. दिस इज अवर सेकेंड इक्वेशन. अब फर्स्ट इज दिस, सेकेंड इज दिस. अब बट इट इज नॉट द लीनियर इक्वेशन.
सो व्हाट वी डू, अब हम क्या करेंगे, लेट करेंगे जैसे मैंने पहले किया था, 1/x को p मान लो और 1/y को q मान लो. सो लेट 1/x इज इक्वल टू p एंड 1/y इज इक्वल टू q. तो इससे क्या होगा, हमारी जो इक्वेशन है वो लीनियर इक्वेशन बन जाएगी. इक्वेशन तो अभी भी है बट ये लीनियर नहीं है. सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ये थी. अब अगर 1/x को p मानेंगे तो क्या बन जाएगा, ये 3p प्लस 6q इक्वल्स टू 6. दिस इज आवर थर्ड इक्वेशन. एंड फ्रॉम सेकेंड ये क्या आएगा, 4/x इज 4p प्लस 2q इज इक्वल टू 5. ओके, नाउ अब हमें क्या करना है, हमें इनके कोएफिशिएंट सेम करने हैं. अब देखिए ये 3 है, ये 4 है. अगर हमको p सेम करना पड़ेगा तो हमें इसको 4 से और इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ पर जो 6 है इट इज मल्टीपल ऑफ 2, तब आपको दोनों को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. सिंपल है, आप इसको अगर आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ क्या आ जाएगा 6, यहाँ ऑलरेडी 6 था, तो +6 और +6 कट जाएंगे जब हम उसके साइन चेंज करेंगे. तो व्हाट वी डू, मल्टीप्लाइंग फोर्थ इक्वेशन कौन सी फोर्थ है, दिस वन. सो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 4 by 3 एंड सब्ट्रैक्टिंग. अब क्या करेंगे हम, अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे. सो सब्ट्रैक्ट करने के बाद किसको किसे देंगे, फोर्थ को थर्ड से. सब्ट्रैक्टिंग फोर्थ फ्रॉम थर्ड. सब्ट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं बच्चों, बिकॉज बोथ आर हैविंग द सेम साइंस प्लस. तो ये इक्वेशन पहली सेम आ गई, नो चेंज. 4 को किससे मल्टीप्लाई करना हमने, 3 से. तो 4 इज 12, 3 2 6, 3 5 15. नो चेंज द साइंस. अब 3 - 12 -9 हट गया. 6 - 15 इज अगेन -9. नाउ अब जब इसको माइनस कर दिया क्या बच गया, व्हाट इज p, दिस इज अगेन कम्स टू बी 1. p की फिर 1 आ गई. ओके, नाउ पुटिंग p इक्वल टू 1 in, let it be third equation. It's your choice, either you can put it in third or fourth because both are having p and q. So ये कितना आ गया, 3 into p is 1, 6 into q is equal to 6. So 6q कितना आ गया, 6 minus 3 is 3. So what is q, 3/6, which comes to be कितना, 1/2. अब यहाँ पर p की वैल्यू 1 आ गई, यहाँ पर q की वैल्यू 1/2 आ गई. तो हमें क्या निकालनी है, दिस इज नॉट द आंसर बिकॉज योर इक्वेशन इज इन x and y. सो जो हमने लेट किया था, सो सिंस 1/x p दिया हुआ है, सो 1/x कितना हो गया, 1 हो गया. सो व्हाट इज x, x इज 1 बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. सो दिस इज द फर्स्ट वैल्यू ऑफ x. ठीक है, देन अब आपने 1/y के दिए, 1/y इज इक्वल टू q. अब बट q की वैल्यू क्या आ गई, 1/2. सो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन द वैल्यू ऑफ y कम्स टू बी 2. सो इस तरह से अब आप चेक कर लो whether you are right or wrong. अगर आप x की वैल्यू 1 पुट करते हो, 6 1 is 6, y की वैल्यू 2 पुट करते हो, 3 2 is 6, 6 plus 6 is 12. अब यहां पुट करो, 1 into 2 2, 6 to 12. तो जब अब दोनों तरफ हमारा 12 आ गया, इट मीन्स आवर सॉल्यूशन इज राइट. दैट इज x इक्वल 1 and y इक्वल 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशंस. तो स्टूडेंट्स, you can check it also whether your solution is right or wrong. So students, now the next part. So look at this part here.
that common terms are 1 upon x plus y in this as well as in second इक्वेशन, दोनों में सेम है. तो अगर आप इसको इक्वेशन, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज सेकंड इक्वेशन, तो अब आप इसमें क्या लेट करेंगे, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को लेट करोगे आप. ठीक है, सो लेट 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को p मान लीजिए एंड 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू q. अंडरस्टैंड? तो बिकॉज दोनों इक्वेशंस में 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इज कॉमन. अब फ्रॉम फर्स्ट व्हाट यू गेट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या आ जाएगा ये, अगर 1 अपॉन एक्स प्लस वाई पी है तो ये क्या आ गया 10p, ये वही q है तो 10q इज इक्वल टू 4. अब देखिए दिस इज व्हाट, इट इज द लीनियर इक्वेशन. तो आप इसको मान लीजिए आप थर्ड. ओके, दिस इज द थर्ड इक्वेशन. एंड वही अगर आप सेकंड इक्वेशन में 1 अपॉन एक्स प्लस वाई की जगह p और 1 अपॉन एक्स माइनस वाई की जगह अगर q पुट करोगे तो क्या आ जाएगा. सो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड क्या आ गया, 15p माइनस 5q इज इक्वल टू -2. अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे हम, वी हैव टू मेक देयर कोफिशिएंट्स सेम. यहाँ पर 10 15 है तो ये थोड़ी बड़ी टर्म है, बेटर इनको करो मल्टीप्लाई. ये 2 है, ये 5 है. अगर आप फर्स्ट को मल्टीप्लाई करोगे इक्वेशन इक्वेशन थर्ड को अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करो और इक्वेशन फोर्थ को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करो तो बेटा यहाँ पर 5 2 10, ये भी 10 आ गया एंड 5 2 10 ये भी 10 आ गया. तो हमारा कोफिशिएंट सेम हो जाएंगे. ठीक है, सो व्हाट टू डू, मल्टीप्लाइंग थर्ड इक्वेशन बाय 5 एंड इक्वेशन फोर्थ बाय 2, और उसके बाद सब्ट्रैक्ट करना है कि ऐड करना है, ऐड करना है. क्यों, क्योंकि यहां पर साइंस ऑलरेडी ऑपोजिट है. एंड एडिंग थर्ड एंड फोर्थ. तो हाउ टू ऐड इट, सो देखिए दिस इज 10, अगर आप इसको 5 से मल्टीप्लाई करो 10 इंटू 5 इज 50, 5 इंटू 2 10, 5 4 जा 20, ये आ गया. अब फोर्थ को किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से, 15 2 जा 30, 5 टू द 10 इट इज -10, 2 टू द 4 इट इज -4. अब हम क्या करेंगे, हम इनको ऐड करना है. सो ये से कट जाएगा. व्हाट वी हैव 80p, 20 minus 4 is 16. So students, what is the value of p? Therefore p becomes 16 by 80. So 16 5 से 80 होता है. ठीक है, तो मतलब p की वैल्यू आ गई 1/5. So one value is here. अब putting now this value of p equal to 1/5 in either third or fourth. So putting p is equal to 1/5, let it be in equation third. So 10 into p is 1/5 plus 2q is equal to 4. So 5 ones are 5, 5 to the 10. So what do we have? 2q is equal to 4 minus 2. So what is q? q is 1. So इस तरह से p की वैल्यू भी आ गई और q की वैल्यू भी आ गई, लेकिन इक्वेशन इज इन एक्स एंड वाई. सो व्हाट टू डू, वही हमने क्या लिख किया था, सिंस 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को हमने p माना था तो p की वैल्यू क्या है 1/5. सो 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1/5. सो स्टूडेंट्स बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन x प्लस वाई इंटू 1 इज x प्लस वाई, 5 इंटू 1 इज 5. तो बेटा अब ये हमारी एक और इक्वेशन आ गई, क्योंकि इसमें हमारी x और y अकेला तो आया नहीं है, दो वैल्यू फिर आ गए, तो ये इक्वेशन बन गई एक और. अब उसी तरह से 1
अपॉन x माइनस वाई को हमने क्या लिया था, देखो यहाँ वी टेक इट एज q, q की वैल्यू क्या 1 है, सो 1 अपॉन x माइनस वाई इज इक्वल टू 1. तो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन x माइनस वाई इंटू 1 इज 1 इज x माइनस वाई इज इक्वल टू 1. ये आ गई हमारी एक और इक्वेशन. तो मतलब इसमें हमने पहले इस इक्वेशन को जब हमने पुट किया वैल्यू p एंड q तो ये इक्वेशन बन गई, और उसके बाद जब हमने इनकी वैल्यू निकाल ली एंड व्हेन वी पुट इट इन प्लेस ऑफ हियर p एंड q, अब हमारी लीनियर इक्वेशन एक और आ गई. बट कोई बात नहीं, अब ये हमारी लीनियर इक्वेशन जो ऑलरेडी x और y की फॉर्म में है, इफ वी जस्ट ऐड देम तो हमारी y की वैल्यू कट जाएगी. तो इट्स सिंपल नाउ, एडिंग फिफ्थ एंड सिक्स्थ. स्टूडेंट दिस इक्वेशंस आर इंपॉर्टेंट बिकॉज इसमें इक्वेशंस में इक्वेशन बन रही हैं. तो व्हाट यू हैव, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, कैंसिल आउट, 2x इज इक्वल टू 6. सो व्हाट इज x, 6/2. तो इस तरह से हमारी क्या आ गई, s की वैल्यू 3 आ गई. अब इस s की वैल्यू 3 को या तो 6 में पुट कर दो या तो 5 में पुट कर दो. सो पुटिंग x is equal to 3, let it be put it in fifth. तो क्या आएगा इधर, 3 plus y is equal to 5 and y is equal to 5 minus 3 which is 2. ओके, तो इस तरह से क्या होगा, अब हमारी y की वैल्यू भी आ गई और s की वैल्यू भी आ गई. सो दिस इज द सॉल्यूशन. देयरफॉर x is equal to 3 and y is equal to 2 is the solution of given equation. ओके बेटा, तो याद रखना है आपकी इसमें इक्वेशंस के अंदर इक्वेशन बन रही हैं, बट जो भी है जब तक आपकी x और y की वैल्यू ना आ जाए यू हैव टू कीप ऑन सॉल्विंग. सो नाउ सिमिलरली जस्ट लाइक सेवेंथ पार्ट we have the eighth part also. So here this is our equation first and this is equation second. अगर आप ध्यान से देखें what is common in these two equations. So look at this, here we have 1 upon 3x plus y, यहाँ भी 1 upon 3x plus y है, ये common है. Here 1 upon 3x minus y, here also we have 1 upon 3x minus y. So students what we let, so let करेंगे, let 1 upon 3x plus y को p मान लो एंड 1 upon 3x minus y को आप q मान लो. तो क्या आ जाएगा, सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या बन जाएगा हमारा, देखिए इधर ये तो 1 upon 3x plus ऑलरेडी है, सो वी हैव p, इट इज व्हाट, q इक्वल्स टू 3/4. बट क्योंकि ये फ्रैक्शन में है इट्स बेटर वी शिफ्ट दिस 4 टू दिस साइड. तो when you multiply it by 4 what you get, by cross multiplication 4p plus 4q is equal to 3. okay, so that जो भी आपकी कोफिशिएंट्स हैं या कांस्टेंट टर्म है वो आपकी होल नंबर्स में रहे या इंटीजर्स में रहे, फ्रैक्शन में ना रहे. सो दिस विल बिकम इक्वेशन थर्ड. ओके, नाउ फ्रॉम सेकंड, अब सेकंड क्या है, 1/2. अब 1/3x प्लस वाई की जगह क्या लिखेंगे हम, p, तो क्या आ जाएगा p/2 माइनस q/2 इक्वल्स टू -1/8. सो व्हाट टू डू, वी हैव टू टेक द LCM. LCM इज 2, p minus q is equal to -1/8. अब सो 2 1s are 2, 2 4s are 8, कट जाएगा. सो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे ले जाएंगे, क्या आ जाएगा, 4p minus 4q is equal to -1. सो स्टूडेंट्स इस तरह से हमारी दो इक्वेशंस आ गई. वन इज 4p plus 4q equal to 3, अदर इज 4p minus 4q is equal to -1. ओके, अब क्या करेंगे, देखो इसमें आप दोनों कर सकते हो. अगर हम ऐड करें ये कट जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कट जाएगा, क्योंकि इसमें हमको कोई मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, इट इज ऑलरेडी इन दैट फॉर्म. सो लेट्स सी व्हाट विल डू, एडिंग थर्ड एंड फोर्थ. बच्चों इसमें आपको चॉइस थी
चाहे आप ऐड करते या सब्ट्रैक्ट करते। तो व्हाट वी हैव 4p प्लस 4q इक्वल्स टू 3, 4p माइनस 4q इक्वल टू -1। जब ऐड करेंगे these two cancel out, what we have 8p is equal to 2, so what is the value of p? 2 by 8 means 1 by 4. This is the value of p. Now putting this p in either third or fourth, putting p is equal to 1 by 4 in, let it be, third equation. So what we have 4 into p is what? 1 by 4 plus 4 into q equals to 3. Up this 4 and this 4 cancel out, so what we left with? We left with 4q. ये 1 था, 1 को when you shift it to other side we will get -1. So students, you will get the value of q as 1 by 2. So here we have one value of p as 1 by 4 and the value of q as 1 by 2. So what to do? Now we have to find the value of x and y. तो क्या करेंगे? We have to put this value p in place of p here in this. So since हमने क्या लेट किया था that 1/3x plus y is equal to p, तो p की वैल्यू क्या 1 by 4 आ गई। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखेंगे क्या बच गया 1 by 4। तो इक्वेशन क्या बन गई हमारी 3x plus y is equal to 4, because 3x plus y into 1 क्या होगा 3x plus y, 4 into 1 होगा 4। ये हमारी फर्दर इक्वेशन बन गई। विच इक्वेशन? दिस इज 5th। ओके स्टूडेंट्स, अब जैसे ये था ऑल्सो हमें क्या लिया था कि 3x माइनस वाई को हमने q माना था। ये देखिए 1/3x माइनस वाई इक्वल q की वैल्यू क्या होगी 1 by 2। सो 1/3x minus y is equal to 1 by 2. So the value of 3x minus y into 1 is 3x minus y. 2 into 1 is 2. तो स्टूडेंट्स इस तरह से 4th और 5th इक्वेशन आ गई। अब क्या करेंगे, देखो ये प्लस वाई है माइनस वाई है, सिंपल ऐड देम। ठीक है, एडिंग 5th एंड 6th, तो क्या आएगा 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 एंड 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। जब ऐड करेंगे कट जाएगा 6x इक्वल टू 6, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x 1। तो हमारी x की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। ओके, अब पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ x इक्वल 1 इन 5th और 6th जहां आप चाहो। सो पुटिंग, ठीक है, x is equal to 1 in let it be 5th equation। तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, देखो what we have 3 into x, that is 3 into 1 plus y equals to 4। तो y, what is the value of y 4 minus 3, ये क्या आ गई 1 आ गई। तो यहां पर x की वैल्यू भी 1 है और y की वैल्यू 1 है। अब हम चेक करते हैं कि whether we are right or wrong। देखिए अगर आप x 1 पुट करो y 1 पुट करो कितना आ जाएगा 1 by 4 आ जाएगा, ये आ गया 1 by 4। इफ यू पुट x इक्वल टू वैल्यू 1 y 1 2 आ गया, तो 1 by 4 प्लस 1 by 2 क्या हो जाएगा, जब हम एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 1 प्लस 3 by 4 दैट इज 3 by 4। तो आपने ये चेक भी कर सकते हो आप कि whether your solution is right or wrong। So therefore x is equal to 1 and y is equal to 1 is the solution of given equations। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? तो बच्चों इस तरह से हमारी इक्वेशंस के अंदर इक्वेशन बन रही हैं, बट तब तक हमने सॉल्व करते रहना जब तक हमारी जो गिवन वैल्यूज हैं कौन सी x और y उनकी वैल्यूज ना आ जाए। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड।